Hello, welcome back in this physics lecture. So, today we are going to learn itself about electric field intensity due to uniformly charged ring at its axis. Okay, so for this student, I'm going to consider this ring. Okay, so as I'm having a ring, so here is a ring. So it is uniformly charged. So uniformly charged, then we are going to use over here this continuous charge distribution. Okay, so I'm having this is a ring, and let us suppose that the charge is distributed on its surface. Here is the charge. So this is distributed on its surface. Now I'm going to suppose that this is the center of the ring, and let we are giving it as the name O. Okay, so now the radius of this ring, that it is going to be A. Okay, so what I have considered over there, a ring on which there is uniformly charged distributed of radius A. O is its center. Okay, so over here, how much is this charge on its surface? So I'm going to suppose that let Q is the charge. Q is the charge on the surface of ring. Okay, so over here what we have considered, that Q is the charge on its surface. Okay, now student, if I will check over there that I want to find out electric field, this due to this uniformly charged ring at its axis. Okay, so axis means the line which is passing through its center. Okay, so it will be perpendicular over there. So therefore student, over here I am going to consider that axis of this ring. So here it is the axis of the ring. Okay, so this is going to be perpendicular at this point. Here it is perpendicularly. Okay, so I'm going to consider a point on its axis. So let us to have this one is the point. It is the point P. Okay, so at what distance it is from the center? So therefore I have considered it to be as x. So it is at x distance from the center. Okay, so now I want to find out the electric field due to of this ring at point P. So for this purpose student, I am going to consider a small length over here. Over here I am going to consider a small length. So just to check over there, here I am going to consider a small length. It is TL. Okay, so I must to know over here that how much is the charge on this small length. Okay, so then I have to look for this situation, that what is this uniformly charged means इसके ऊपर क्या है, continuous charge distribution है. ठीक है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना बोला गया ऑलरेडी, that it is Q. Okay, so how much is the charge on its unit length? तो छोटी सी लेंथ के ऊपर चार्ज क्या होगा, दैट विल बी एज लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वी वांट टू फाइंड आउट. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो व्हाट इज ऑलरेडी नोन टू अस इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय लैम्डा एंड इट इज इक्वल टू दैट ऑफ चार्ज ऑन इट्स यूनिट लेंथ. तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ मतलब कि इसकी सरकमफ्रेंस, सो इट इज 2πa. ठीक है, सो दिस इज दैट चार्ज ऑन इट्स यूनिट लेंथ. तो इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा होगी. ठीक है, सो देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस डीएल लेंथ. अगर छोटी सी लेंथ पे, अगर हमारे पास यूनिट लेंथ पे लैम्डा होती है तो डीएल लेंथ पे क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर चार्ज on dl length of ring. So over there we will write this one as, because it is going to be the small length, so therefore it will be over here that charge is going to be small charge. So therefore this is over here that charge is dl into lambda. So this is what, this is I'm having that charge. So dq is what, lambda dl. It is that small charge on this small length. Okay, so now student, we must remember this one now. What is happening over here, there is a small charge. यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज है जिसको हमने डी क्यू लिखा.
तो इस ड्यू क्यू की वजह से हम पहले क्या करते हैं, पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर एज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पी के ऊपर अगर हम जो टेस्ट चार्ज सपोज करेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्सन। तो जिस तरफ रिपल्सन होगी उसी साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी exert करेगी. So this is that electric field over here. So here I have taken this one. ठीक है. So this electric field at P it will be outward. लेकिन ये कैसी फील्ड है, छोटी सी फील्ड है, क्योंकि छोटे से एलिमेंट की हम अभी बात कर रहे हैं, पूरे रिंग की बात नहीं मैंने की, ठीक है। तो छोटे से एलिमेंट की बात की है। तो दिस इज इफ आई एम सपोजिंग दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंटल लेंथ फ्रॉम P पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं R लिखता हूँ, ठीक है। सो यू कैन चेक ओवर हियर हाउ मच इज दिस R। तो ये मेरे पास क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करोगे। सो व्हाट इट सेज दैट जो थर्ड साइड का स्क्वायर है वो हमारे पास बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। Okay, so this is then we can write over here that R is what, under root of x square plus a square. Okay, so this I am having that distance between this elemental charge and that point P. Okay, so then how can I write this electric field? इस छोटी सी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? So therefore इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू, छोटे से चार्ज की वजह से एट पी, तो कितनी हो जाएगी एट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ी है। व्हाट विल बी दैट वन, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इट इज के क्यू। वो चार्ज कितना है, सो हेयर वी आर टेकिंग इट इज डी क्यू चार्ज अपॉन में दैट डिस्टेंस आर का स्क्वायर। और विच साइड इट इज, सो इट इज एट दैट पॉइंट P, ठीक है। तो ये P पॉइंट के ऊपर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो ओवर हेयर स्टूडेंट इफ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस R, देन व्हाट आई विल गेट ओवर हेयर, देन इट विल बी के डी क्यू अपॉन में R स्क्वायर वैल्यू ऑलरेडी रिटर्न बाय अस, इट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो दिस वी आर हैविंग x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो दिस आई एम हैविंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो वेयर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एट पॉइंट P। नाउ जस्ट टू चेक ओवर हियर स्टूडेंट, ये तो मेरी एक छोटी से एलिमेंटल लेंथ की वजह से है, ठीक है। तो इसके जस्ट मैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर भी अगर मैं इतनी ही स्मॉल लेंथ कंसीडर करता हूँ dl, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। तो यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी। सो दिस इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हेयर इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट यू विल फाइंड ओवर हेयर। लेकिन आप चेक करो, जितना डिस्टेंस इस एलिमेंटल का सेंटर से था वही डिस्टेंस इसका भी बनता है, ठीक है। जितना इस एलिमेंटल लेंथ से पॉइंट P की डिस्टेंस है उतनी ही हमारे पास इस एलिमेंटल लेंथ से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है। तो इसलिए हमारे पास ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ये क्या हुई, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास P के ऊपर क्या होने वाले हैं, इक्वल। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो ही एलिमेंटल लेंथ आने वाली है। यहाँ पर देखो दिस साइड बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एलिमेंटल लेंथ इस तरफ भी हैं, ठीक है, और इस तरफ भी हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी एलिमेंटल लेंथ्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास उन सब की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें इस पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट हमने ये सपोज किया, ये जो एंगल बना यहाँ पर इस एक्सिस और उस डिस्टेंस के बीच का, ये एंगल हमने यहाँ पर थीटा कह दिया। जो थीटा एंगल है वो उस P के ऊपर बन रहा है, ठीक है। सो नाउ ओवर देयर what we are going to do, we are going to resolve this electric field। नेट फील्ड को निकालने के लिए इस पॉइंट P के ऊपर हम रिजल्टेंट जो रिजॉल्व कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जैसे मेरे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट बनाए मैंने, ठीक है। सो जस्ट टू चेक दिस वन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे पास वर्टिकल एंगल होंगे। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, थीटा थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट है जो इस लॉन्ग द एक्सिस एक्ट कर रहा है, ये कौन सा बन गया, ये बन गया हमारे पास डी ई कॉस थीटा।
ये कंपोनेंट जो इसके अलॉन्ग जा रहा है वो कौन सा है, डी ई कॉस थीटा। और ये जो कंपोनेंट है जो वर्टिकल है, जो उसके परपेंडिकुलर है एक्सिस के, ठीक है, तो इसको बोला हमने दैट इट इज डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो यही कंपोनेंट स्टूडेंट इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के भी होंगे, क्योंकि लोअर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दो कंपोनेंट में बनाया, अपर वाली को भी दो कंपोनेंट में बनाते हैं। ठीक है, तो इसके भी क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट, एक बन जाएगा डी ई साइन थीटा और दूसरा हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, जो इस एक्सिस के अलॉन्ग ही है। ठीक है, तो इसलिए व्हाट वी डिड ओवर हेयर, यहाँ पर हमने क्या किया, हाँ, तो यहाँ पर हमने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एट पी इनटू इट्स कंपोनेंट। तो उसको हमने उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व का मतलब तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट दैट इट वाज डी ई कॉस थीटा, तो डी ई कॉस थीटा इट वाज पैरेलल टू एक्सिस। ओके, सो एट दैट पॉइंट ये क्या था, पैरेलल टू एक्सिस था। बट दिस सेकंड वन डी ई साइन थीटा, सो डी ई साइन थीटा इट वाज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, परपेंडिकुलर to the axis, perpendicular to axis. Okay, so over here student that we are looking, जो जितने भी कंपोनेंट हैं यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर, इस रिंग के ऊपर, ठीक है, उन सब के हमारे पास इस पॉइंट पी के ऊपर क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनने वाले हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलोंग द एक्सिस और वर्टिकल उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट cancels their effect, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से एक्ट कर रहा है डी ई साइन थीटा, तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस तरह से लग रहा था, तो दोनों क्या थे, इक्वल थे और अपोजिट बन रहे हैं। इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, दोनों कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे का इफेक्ट जो है। बट ओवर देयर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे पास ऐड हो जाते हैं, कंपोनेंट एडेड। ठीक है, ये क्यों ऐड हो जाते हैं, जस्ट टू चेक ओवर देयर, जो हमारे पास अलोंग द एक्सिस जो एक कंपोनेंट था डी ई कॉस थीटा, उस एलिमेंटल की वजह से वो राइट साइड एक्ट कर रहा था, वैसे ही दूसरे की वजह से भी क्या कर रहा था, राइट साइड ही एक्ट कर रहा था। तो इसलिए सारे के सारे कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अलोंग द एक्सिस एक्ट कर रहे हैं। जस्ट टू चेक इन द डायग्राम, यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट थे इस जगह के ऊपर, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही तरफ एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टुवर्ड दिस अप डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो नेट फील्ड होगी पी के ऊपर वो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से है। सो दस देयरफॉर नेट फील्ड, देयरफॉर नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, नेट मीन्स इट इज सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं समेशन हम तब यूज़ करते हैं जब लिमिटेड नंबर हो। ठीक है, लेकिन हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर कि क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट हमने यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, छोटी सी एलिमेंटल लेंथ के ऊपर जो चार्ज है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास, इट इज़ देयरफॉर इंटीग्रेशन, सो डी ई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो नाउ ओवर हियर स्टूडेंट डी ई एक स्मॉल एलिमेंटल की इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पहले ही एक्सप्रेशन निकाला है, और जो हमारे पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा हमने उस डायग्राम से निकाल लेना है। सो लेट अस टू चेक इट अगेन। इस डायग्राम को अगर हम वंस अगेन चेकआउट करते हैं, ठीक है, तो इसमें थीटा तो ये बन रहा है, तो अगर मुझे इस ट्राइंगल से कॉस थीटा निकालना हो, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये वाली साइड बेस बन जाएगी, ये वाली हाइपोटेन्यूस बन जाएगी। तो इसलिए व्हाट विल बी कॉस थीटा फॉर मी फ्रॉम दिस ट्राइंगल, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी मेरे पास एक्स वाई आर।
ठीक है, और आर की वैल्यू तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं, ठीक है। सो देयरफॉर आई एम पुटिंग दिस वन इन दिस, सो फ्रॉम ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, this cos theta is what it is, that of x by r, okay, or either I can write it as this of x square plus a square ka unroot 1 by 2, okay. So this is that cos theta. So put it, therefore electric field what it will be, it will be integration of dE. So dE already written over here, check it out, dE what, k dq upon my x square plus a square, it is already written over here. So thus we can have this one, it is over that formula, k dq upon में that of r square. So r square is written over there, x square plus a square, and that of cos theta. So cos theta value is here x square plus a square 1 by 2. Okay, so this I am having. So now over here student, just to check one thing, हाउ मच वॉज दैट स्मॉल चार्ज, ये जो डी क्यू था ये ऑलरेडी हमने कितना लिखा था, सो यू कैन चेक इट अगेन। डी क्यू को हमने क्या लिखा था यहाँ पे, वी हैव रिटन डी क्यू, इट इज़ व्हाट, लैम्डा डी एल, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन मेक हेयर बिकॉज दिस डी क्यू इज़ व्हाट, लैम्डा डी एल, ओके। सो दस आई कैन हैव दिस वन इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एल एक्स अपॉन में देयर इज दिस वन, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1/2, तो टोटल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, दिस आई विल गेट देयर, ठीक है। सो हेयर व्हाट विल बी दैट इंटीग्रेशन, किसकी इंटीग्रेशन हो रही है, ओनली डी एल टर्म की इंटीग्रेशन, छोटी छोटी एलिमेंटल लेंथ को ही हमने जोड़ना है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जुड़ेगी तभी टोटल बनेगी, इसलिए किसकी इंटीग्रेशन हो रही है, डी एल की, तो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट, तो इसलिए क्या बन गया, के लैम्डा एक्स अपॉन में, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास बन गया दैट इट इज़ के लैम्डा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल 3/2 एंड इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस स्मॉल टर्म, ठीक है। सो दस आई कैन हैव टोटल लेंथ, अगर मैं पूरे रिंग के ऊपर ऐड करूँगा तो वो क्या हो जाएगी, बिकॉज दिस डी एल इंटीग्रेशन ऑफ अ रिंग इट विल बी 2πa, वो उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। सो ए उसका रेडियस लिया था हमने, है ना, तो इसलिए क्या बन गया ये, दैट इट इज के लैम्डा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल 3/2 एंड ओवर देयर इट इज 2πa, okay. So this I get over here. Now student you will check it again once again just to come on this very first page, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई 2πa। सो हाउ मच वॉज दिस टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या बन गया था, लैम्डा इंटू 2πa, ये हमारे पास क्या बन गया था, टोटल चार्ज बन गया था, है ना, इस तरह से लिख सकते हो आप इसको। सो जस्ट टू चेक इट इन दिस वन, इसमें भी आप चेक करो, तो इसमें ये लैम्डा इंटू 2πa बन रहा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया बिकॉज लैम्डा इंटू 2πa इट इज़ इक्वल टू दैट ऑफ टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज था। सो दस आई कैन राइट दिस इक्वेशन, तो इसलिए इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, रीराइट किया। सो दस आई गेट इट एज ई इक्वल टू के दैट ऑफ क्यू एक्स वाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2, okay. So it is that electric field, but remember over here k is what, k is 1/4 pi epsilon naught, ठीक है। तो मैं बार बार k की वैल्यू को लिखना अगर शुरू करता हूँ, मे बी कुछ चीज़ मिसअप हो जाएगी, स्किप कर जाएगी, तो जिसकी वजह से फिर हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती हैं, इसलिए मैं k को विदाउट वैल्यू लिख रहा हूँ, यानी कि 1/4 pi epsilon naught यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो दस वी गेट ओवर हेयर स्टूडेंट, हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट डिस्टेंस p, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज के क्यू एक्स
अपॉन में दैट ऑफ x square plus a square का होल 3/2. Okay, now let us to take the special and direction. If we will say what is the direction of this, so we are saying direction is along the axis, along the axis of ring. It is the direction. ठीक है, क्यों तो बाहर की तरफ एक्ट कर रही है. जस्ट टू चेक इट अगेन इन द डायग्राम. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे वो एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो इसलिए हमारे पास अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग ये एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस टू टेक ओवर हियर स्पेशल केसेस. Special cases. So first case that I am going to take where this electric field will be 0. So I am supposing that if दिस x इज 0, मतलब कि मैं जो पॉइंट P है वो बिल्कुल जैसे ये मेरे पास एक रिंग था तो इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर ही अगर मैं सपोज करूं तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ठीक है, तो सेंटर के रिंग पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. नाउ द सेकेंड पॉइंट विच वी आर गोइंग टू टेक ओवर हियर एंड दिस इज दैट इफ दिस डिस्टेंस विच वी आर सपोजिंग दैट, अगर हम पॉइंट P जो एक्सिस के ऊपर कंसिडर किया, इट इज एट अ फार डिस्टेंस फ्रॉम एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग. मतलब कि जैसे ये मेरे पास ये रिंग है, ये रिंग है, ये इसका सेंटर था और ये यहाँ पे उस पॉइंट P की पोजीशन थी जिसको हमने x लिखा था और ये इसका अपना रेडियस था a. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, x अगर a से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है, a के कंपेरेबल बहुत ही बड़ा है, तो दैट टाइम व्हाट यू विल डू, ये जो x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर है ये नियरली क्या कर देना है, x स्क्वेयर. ठीक है, a बहुत छोटी सी टर्म होगी, जैसे 1000 में 0.2 को ऐड करना तो 0.2 बहुत छोटी सी टर्म होगी, इसलिए हमारे पास दैट वी कैन कंसिडर दिस इज मेजर इफेक्ट इज ऑफ ओनली x टर्म. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इट विल बिकम, सो देन आई विल राइट दिस वन एज k, इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ. सो व्हाट इट विल बी देयर, KQX अपॉन में x स्क्वेयर का होल 3/2. ठीक है, सो दिस आई एम गेटिंग ओवर देयर. जस्ट टू चेक इट अगेन, क्या किया गया यहाँ पर, जो वैल्यू है वो रखी गई उस फार्मूले के अंदर, तो इसलिए स्क्वायर और 1/2 कैंसिल हुआ और जो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर, KQXY x की पावर 3, एक पावर इसने कम की, तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQY x स्क्वायर. नाउ जस्ट टू चेक दिस वन, ये तो ठीक वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से होती थी. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज. ये तो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी. इसका मतलब हो गया रिंग के ऊपर जो जितना भी चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज कब बन जाएगा, जब हमारे पास जो डिस्टेंस है उस पॉइंट P का वो उसके रेडियस के कंपैरेबल बहुत ज़्यादा होगा, तब वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज फॉर्मेशन की हमने बात करी थी. सो नाउ नेक्स्ट दैट विच वी आर टेकिंग ओवर हियर दैट वेयर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होगी. ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना, आपने जब भी फाइंड आउट करना हो तो इसमें एक चीज़ याद रखना, कहाँ पे मैक्सिमम होगी, मतलब कि जब ये मैक्सिमम हो जाएगी तो उसके बाद चाहे आप जितना मर्जी जो डिस्टेंस है वो बदलते जाएं, पोजीशन को बदलते जाएं, वो अनचेंज होगी. तो इसलिए मैक्सिमम के लिए आपने क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट शुड नॉट टू चेंज विद द पोजीशन ऑफ पॉइंट P. ठीक है, तो उस P की पोजीशन के साथ उसको नहीं बदलना है. तो अगर ये चेंज नहीं करेगा तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी 0. इट शुड नॉट टू चेंज विद द डिस्टेंस. ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल हो जाना चाहिए. ठीक है, सो नाउ देयरफॉर स्टूडेंट वी आर लुकिंग ओवर हियर DDX. हाउ मच इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, इट इज KQX अपॉन में
एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का 3/2, दिस वॉज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, नाउ ओवर हेयर जस्ट लुक, यहाँ पर कौन सी चीज़ें जो है बदलने वाली हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स वाले टर्म है वही, मतलब कि हमने वेरिएबल लेने हैं, बाकी अदर टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसका मतलब हो गया के क्यू बाहर निकालोगे और अंदर रह जाएगा डी डी एक्स ऑफ दैट ऑफ एक्स अपॉन में दैट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल 3/2, दिस विल रिमेन ओवर देयर एंड इट इज इक्वल टू 0। इस वाली टर्म को आप राइट साइड ले जाओ तो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए क्या रहेगा हमारे पास लेफ्ट साइड में, इट इज डी डी एक्स ऑफ चेंज इन दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इट इज एक्स अपॉन वाली टर्म को आप ऊपर ले जाओगे तो ये क्या करेगा, अपना साइन चेंज करेगा, तो इसलिए -3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। ठीक है, नाउ डू वन थिंग, ये जो अब डिफरेंशिएशन जो है इस टर्म की आपने करनी है, तो इसमें ये जो x है ना, इसको आप क्या करें, ये जो x है जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको आपने फर्स्ट फंक्शन मानना है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट फंक्शन। और ये जो दूसरी जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, इसको आपने सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास डिफरेंशिएशन अब कैसे होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है दैट इट इज दिस वन ओवर हेयर, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की -3/2। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन and it is differentiation of first function डी डी एक्स ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन x है हमारे पास, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल है हमारे पास। क्या बोला गया, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखो, डिफरेंशिएशन दूसरे की कर दो, प्लस दूसरा फंक्शन लिखो, फिर डिफरेंशिएशन फर्स्ट की कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखो dx और dx तो कट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बना हमारे पास, पावर है ना, इसकी होल पावर क्या है, -3/2। तो पावर रूल लगाएंगे पहले, तो क्या आ जाएगा, x तो एज इट इज लिखो, इनटू पावर रूल में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा -3/2, ये इसकी पावर आगे आ गई। ठीक है, और होल पावर में से क्या हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर -3/2 से आपने एक कम कर देना है, 1 माइनस हो जाएगा, इनटू ओवर देयर। अब हमारे पास ये तो पावर की डिफरेंशिएशन हुई, अब उसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो इनकी भी डिफरेंशिएशन होनी है। तो ए तो कांस्टेंट है, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन 0 होनी है, लेकिन एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या हो जानी है, 2x हो जानी है। ठीक है, सो प्लस ओवर देयर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का -3/2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट यू विल फाइंड ओवर देयर, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये x है ये x है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर बन गया, और ये -3 था तो -3x स्क्वेयर, और होल पावर कितनी बन गई, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर -5/2 बन गया, प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसकी पावर क्या होगी, -3/2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, नाउ चेक ओवर देयर, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर -3/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो जब ये कॉमन लिया राइट साइड जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए मेरे पास बचा क्या, इसको कॉमन लेने के बाद -3x स्क्वेयर, यहाँ से -3/2 अगर आपने बाहर निकाल दिया तो -1 वाली पावर रह जाती थी, तो इसलिए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के बाद -1 रह गया यहाँ पे, +1 इक्वल टू 0। ठीक है, -1 का मतलब डिनोमिनेटर की टर्म है, तो -3x स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, सो डू द एल्सियम एंड टेक द टर्म टू द राइट साइड देयर आफ्टर। ठीक है, तो इसलिए क्या बन गया हमारे पास, इट इज़ -3x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू that of 0, and here we get that it is -2x square plus a square equal to 0, and thus 2x square a square को राइट साइड ले जाओगे तो it is a square, and finally we are having
this x square is equal to a square by 2, or either x is equal to square root of this a square by 2. So we can write it is plus minus a by under 2. Okay, so thus I get over here. तो इसलिए मेरे पास क्या बन गया, ये है वो डिस्टेंस. सो इट इज़ दैट डिस्टेंस ऑन एक्सिस वेयर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई अंडर 2. ओके, इम्पॉर्टेंट है हमारे पास ये एग्ज़ाम क्वेश्चन. ठीक है, नाउ ओवर हेयर अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन कैसे होगी, जस्ट टू चेक. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दी, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, नाउ एट द सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0 थी. ठीक है, और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो जस्ट टू चेक दिस रिलेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है हाउ इट इज़ गोइंग टू वेरी. ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारे पास उस यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिंग के ऊपर, वो क्या थी, डायरेक्टली टू एक्स है. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे ये क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, लेकिन ये इंक्रीज कब तक होती है, जब तक ये मैक्सिमम ना हो जाए. ठीक है, जैसे ये यहाँ पर पहुँची तो ये मैक्सिमम हो गई, तो ये प्लस वाली साइड में यूज़ कर रहा हूँ ए बाई अंडर 2, ये डिस्टेंस है एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हुई, और उसके बाद ये क्या कर रही है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेशल केस, जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा उसके बाद ये पॉइंट चार्ज की तरह इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होना शुरू हो जाती है. तो इस तरह से ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. ठीक है, सिमिलरली ओवर देयर इस तरफ भी आप कर सकते हो नेगेटिव डिस्टेंस के लिए. तो यहाँ पर पहले तो इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम होकर के डिक्रीज करती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे क्या हुई, मैक्सिमम हुई, और उसके बाहर ये वेरिएशन कैसी है, इन्वर्सली टू दैट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, तो उसके बाहर ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ओके, सो होप सो दैट you come to know about that how to have the answers for this electric field intensity due to continuous charge distribution. Thank you.